अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर दैट इज़ ऑन द ग्लाइकोलिसिस. In the previous lecture I talked about what is respiration, different types of respiration, and the comparison between the aerobic respiration and the anaerobic respiration. Today we are going to study the first phase of the respiration, that is the glycolysis. Glycolysis is the type of aerobic respiration that takes place in the cytosol of the cell. So let's start with the definition of the glycolysis. In this lecture we are going to study that what is glycolysis and what are the different steps that take place during the glycolysis. Now the question is, what is glycolysis? A glycolysis is the combination of two words. The first word is glyco and the second word is lysis. Glyco with glucose and the lysis with breakdown. So it is the type of respiration in which the breakdown of the glucose takes place in the presence of oxygen. So glycolysis is a series of reactions that extract energy from glucose by splitting it into three carbon molecules called the pyruvates. So during glycolysis the glucose is breakdown into the three carbon molecule that is known as the pyruvate, and in which the energy is released. Glycolysis is an efficient metabolic pathway, so it is evolved long time ago. It is found in majority of the organism alive today. So in most of the organism the glycolysis take place. So glycolysis is the first phase of respiration in which the glucose is breakdown into the three carbon molecule that is known as the pyruvate, and the energy is released. So it is a metabolic pathway that occur in a series of reactions. So it is not the simplest, as the definition is it take place in a series of reactions. In organism, cellular respiration, glycolysis is the first stage of this process. So in those organisms where the respiration takes place with the help of oxygen, the glycolysis is the first stage of the cellular respiration. However, glycolysis does not require oxygen, and many anaerobic organisms that do not use oxygen also have this pathway. So glycolysis occurs both in the organism that have aerobic respiration, and it also occurs in those organisms that do not require the oxygen for the respiration. So it is present both in the prokaryotes and in the eukaryotes. Let's talk about glycolysis in detail. Glycolysis is the type of cellular respiration that takes place in the cytosol of the cell, and it can be broken down into two main phases: the energy requiring phase above the dotted line in the image below, and the energy releasing phase below the dotted line. So it is the type of respiration in which the energy is required, and the other phase in which the energy is released. So एनर्जी रिक्वायरिंग फेज़, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में कहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो एनर्जी रिक्वायरिंग फेज़ क्या है? इन दिस फेज द स्टार्टिंग मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट रीअरेंज. तो क्या होता है, जो ग्लूकोज मालिक्यूल जिसने पार्टिसिपेट करना होता है ग्लाइकोलिसिस में, उसकी रीअरेंजमेंट होती है. कैसे? एंड टू फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच टू इट. तो उसके अंदर क्या होता है, जब उसकी रीअरेंजमेंट होती है तो एक नंबर 1 पोजीशन पे और नंबर 6 पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होता है. तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, जो कि एक अनस्टेबल जो है वो मॉलिक्यूल है. तो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी रिक्वायरिंग फेज में सबसे पहले कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे क्या अटैच होता है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच होता है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कि जो कि 6 कार्बन एटम्स से मुश्तमिल था. जो सर्कल्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है वो कार्बन एटम्स को शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो 6 एटम्स में मुश्तमिल है, ठीक है. और यहाँ पे क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसीजर है, तो एटीपी जो है, जो कि रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो ब्रेकडाउन होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, एटीपी में, ठीक है. उसके बाद फिर एटीपी जो है, यानी कि शुरू में 2 एटीपी जो हैं वो यूटिलाइज्ड होते हैं, तो वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट. तो अगर यहाँ पे देखो तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि 6 कार्बन एटम में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 की पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है. अब ये अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि बाद में ये जो है वो 3 कार्बन एटम DHAP में
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाद में अनस्टेबल ये इस वजह से है कि बाद में जो ग्लूकोज है, जो सबसे पहले वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूटिलाइज करता है और कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, जिसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अब ये जो है वो अनस्टेबल है और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, DHAP के अंदर, ठीक है। और जो बाद में ये जो DHAP है ये इंटर कन्वर्टेड है किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, DHAP में, और DHAP जो है वो कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये सबसे पहली फेज़ है ग्लाइकोलाइसिस जिसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज्ड होती है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि फॉस्फेट जो है वो यूटिलाइज्ड होता है, तो ATP और 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, यूटिलाइज्ड होंगे। Here in the diagram you can see that one reaction take place above the dotted line, other reaction take place below the dotted line। तो ये जो dotted line से ऊपर जो reaction है वो energy requiring phase है, ठीक है। वहाँ पे energy जो है वो required होती है, उसमें energy utilized होती है। और जो below the dotted line phases है जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो फाइनली पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि NAD+ जो है वो कन्वर्ट होता है NADH में, और ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ATP में, और ATP फिर एंड में कन्वर्ट हो रहा है ATP में। तो इसका मतलब है कि जो दो जो मॉलिक्यूल्स हैं ATP के जो शुरू में यूटिलाइज्ड हो रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में, एंड में वो क्या रिलीज होते हैं। तो ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस इनिशियली जो है 2 मॉलिक्यूल्स ATP यूटिलाइज्ड होते हैं, और एंड में जो है आफ्टर जब ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है तो दो जो क्या नाम है जो ATP है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं जब ग्लूकोज जो है वो फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पायरोवेट में। सो द 3 कार्बन शुगर फॉर्म्ड व्हेन द अनस्टेबल शुगर ब्रेक डाउन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन होता है तो वो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है जो 3 कार्बन कंटेनिंग एटम से मुश्तमिल होता है। ओनली 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैन एंटर द फॉलोइंग स्टेप्स। However, the unfavorable sugar DHAP can easily be converted into favorable one, so both which pathway is the end। तो ये पहला जो है जहाँ पे जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है DHAP में, और DHAP जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये जो स्टेप है ये एनर्जी यूटिलाइजेशन स्टेप है। उसके बाद जो बिलो डॉटेड लाइन है डैट इज़ द एनर्जी रिलीजिंग फेज। अब एनर्जी रिलीजिंग फेज में क्या होता है, in this phase each 3 carbon sugar is converted into another 3 carbon molecule pyruvate। तो अगर हम देख सकते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरोवेट में, जो कि 3 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होता है। through a series of reaction in this reaction 2 ATP molecule and 1 NADH molecule are made। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन में देखो तो स्टार्ट में NAD+ जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है NADH में, जो कि एनर्जी रिच सोर्स है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ADP जो है वो कन्वर्ट होता है ATP में, और लास्ट में फिर ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ATP में। तो इस तरह से ये जो ग्लाइकोलाइसिस है तो उसमें सबसे पहला एनर्जी यूटिलाइजेशन आता है, बाद में जो है वो एनर्जी जो रिलीजिंग फेज आती है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो 2 कार्बन शुगर्स हैं, तो इट मेक्स 4 ATP एंड 2 NADH ओवरऑल। तो वो 2 जो हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ईच रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस कैटलाइज्ड बाय इट्स ओन एंजाइम। तो हर रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस का है जिसमें वो एक एंजाइम एक कंपाउंड जो है वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, आल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। So the most important enzyme for the regulation of glycolysis is the phosphofructokinase, which catalyze the formation of unstable 2-phosphate sugar molecule fructose 1,6 biphosphate। तो क्या होता है, जो phosphofructokinase है वो क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। तो जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है इट स्पीड अप और स्लो डाउन द ग्लाइकोलाइसिस इन रिस्पॉन्स टू द एनर्जी नीड ऑफ द सेल। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड अप और द स्लो डाउन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस।
So overall glycolysis converts 1,6 carbon molecule of glucose into 2,3 carbon molecules of pyruvate. ठीक है, तो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है 2 मालिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं. द नेट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस आर 2 मालिक्यूल्स ऑफ ATP. ठीक है, 4 ATP प्रोड्यूस, 2 जो है वो यूज अप हो जाते हैं एंड 2 मालिक्यूल्स NADH फॉर्म. तो जो नेट प्रोडक्शन है ग्लाइकोलिसिस की, डेट इज द 2 ATP मालिक्यूल्स. क्यों 2 ATP? क्योंकि 2 जो है वो इनिशियली यूज भी हो जाते हैं. तो इस तरह से जो है इसका जो नेट प्रोडक्शन है वो कितनी है 2 ATP एंड द 2 NADH मॉलिक्यूल. So in this reaction we have seen that what is glycolysis and what are the two phases of the glycolysis, energy requiring phase and the energy releasing phase. तो एक फेज़ जो है वो एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज़ है जिसमें 2 ATP जो है वो यूटिलाइज्ड होते हैं और NADPH जो है वो कन्वर्ट होता है NADP में. तो इसी तरह से जो एनर्जी रिलीजिंग फेज़ है उसमें जो है वो ADP कन्वर्ट होता है ATP में. तो नेट प्रोडक्शन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और जो ग्लूकोज है वो फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट होता है थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर. पायरोवेट जो क्या है एक 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो दिस इज द overall process of glycolysis. Now in the next lecture we will see each step in detail कि कितने steps में glycolysis होती है और कौन से step में कौन सा enzyme जो है वो utilized होता है, कहाँ पे जो है energy released हो रही है, कहाँ पे energy जो है वो utilized हो रही है. ठीक है, तो next lecture में हम देखेंगे detailed steps of the ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे हमने बस देखा कि ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली होती क्या है और ये कहाँ पे होती है, साइटोसोल में होती है. और इसके अलावा इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन और इसकी जो नेट प्रोडक्शन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और फाइनल प्रोडक्ट इसकी क्या है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरोवेट. सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी ऑन द reactions take place during the glycolysis.